Very warm good evening, my friends and collectives. Thanks for watching my channel and giving such love to Abha Mystic 1111. I'm going to do the reading from this tarot deck today, and I'm going to take the messages from this deck for your partner's feelings. Let us see that जिनके लिए भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके और उनके रिश्ते में क्या चल रहा है। तो जिस भी पर्सन का आपके जहन में ख्याल है इस वीडियो के टाइम पे, आप उनका चेहरा इमेजिन कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे उनके एनर्जीज़ में जाकर देखने की कि आप दोनों के रिलेशनशिप की जो एनर्जी है, करंट एनर्जी है, वो क्या है, उनके डीपेस्ट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, उनके फ्यूचर एक्शंस क्या हो सकते हैं और इस रिलेशनशिप के लिए जो डिवाइन मैसेज है या डिवाइन गाइडेंस है वो क्या आ रही है। तो विदाउट delaying it, let's begin the energy. Please like my video, share my video and type 1111 to claim these energies, क्योंकि एक एनर्जी कनेक्शन ज़रूर हमें एक्सचेंज करना चाहिए, तो प्लीज़ उसको शुरू में ही कर लीजिए और ताकि जो आपके कार्ड्स हैं वो डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करें। वैसे ये कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करें आप अपने साथ रखिए, अगर ना रेजोनेट करें तो आप उसको दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। थैंक यू। सो लेट्स बिगिन। What is going on in this relationship with the person for whom my collective is watching this video? What is going on in this relationship, angel, spirit guides? Just I will take one more card for you. Empress in the bottom deck. God, I was talking about Empress and I got the Emperor. So it's again a divine couple. Divine feminine and divine masculine has appeared in this. It's a very powerful reading, guys. Judgment in the bottom deck after taking out the Empress. So basically it's about this divine couple. There are some major changes have happened after this full moon, which was on 12th of May. मेरी लास्ट रीडिंग में भी मैंने यही कहा था कि 12th मई की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप हैं और किसी तरह का इमोशनल टर्मोइल जो है ये आप दोनों की ज़िंदगी में कोई मेजर शिफ्ट लेके आएगा। आई सी दैट सडनली द पैशन हैज़ इंक्रीज्ड फॉर यू इन दिस पर्सन आफ्टर दिस फुल मून। ये बहुत ज़्यादा डेस्परेट है अब आपको देखने के लिए, आपको मिलने के लिए, एंड देयर इज़ दिस फायर एनर्जी। कैन यू सी दिस फायर on the crown of this person and at the back? जिसे कहते हैं ना एक आग लग जाना। How should I express this? You know, they are getting actually desperate. They are getting desperate. They are hanged in a situation. The energy is stuck. That means there is no connection, or maybe there has no movement in this relationship for a very long time. But I see very promising communication coming in 8 weeks. Very promising communication coming in 8 weeks. We have got 9 of Wands and 9 of Swords. So Knight of Wands and Knight of Swords means that they want action now. It's high time that they have not taken the action, they want to take the action. They feel that you are their empress and they are your emperor. So it's a power couple, divine feminine and divine masculine. So पहली बात तो यही है कि अगर कम्युनिकेशन नहीं है, गैप है, स्टेगनेंट एनर्जी है, ग्रोथ नहीं है रिलेशनशिप में, किसी तरह का आपको कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रहा है, तो ये मूवमेंट 8 हफ्तों में आ रहा है, मैक्सिमम 8 डेज़ और 8 वीक्स। 8 वीक्स भी हो सकते हैं और 8 डेज़ भी हो सकते हैं। जजमेंट इज़ कमिंग नाउ। दिस पर्सन इज़ रेडी टू हेयर हिज हार्ट, हिज कॉलिंग। गॉड इज़ ट्राइंग टू गिव द सिग्नल्स, मे बी डिवाइन सिग्नल्स हो सकता है। 1111 मल्टीपल इनको चैनलाइज हो रहा है बार बार और बहुत सारी चीज़ें उनके सामने ऐसी आ रही हैं जिससे उनको आपकी याद, आपके नाम की याद, आपके चेहरे की याद आ रही है। सो दिस पर्सन इज़ गेटिंग डेस्परेट एंड ऑल्दो दे वर fearful to come towards you, they are still confused, they are fearful, they don't know whether you will accept them or not. Maybe they are confused about it, but now it has taken a very deep rooted emotional bent in the person's mind, and this person wants you at any cost now, and they will definitely start this communication and try to come towards you within 8 weeks.
This person is also might be struggling on his finances or business or work. Okay, judgment wasn't done. Angel spirit guides, मेरे कलेक्टिव के जो ये पर्सन है जो ये एक्शन लेना चाह रहे हैं इनकी तरफ, इनकी अभी करंट फीलिंग्स और डीप फीलिंग्स क्या हैं, क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से. Don't know what kind of energy I'm getting here. OMG, OMG. I've got 10 of Cups, 10 of Pentacles, Queen of Swords, King of Swords, Ace of Swords. They want to communicate. They want to talk it out. They want to talk to you. जो भी आज तक नहीं कहा है, जो भी थॉट्स अपने आप को एक्सप्रेस नहीं किए हैं, वो सब कुछ आपसे कहना चाहते हैं. इट्स हाई टाइम. उन्हें लगता है बहुत दबा लिया, बहुत सप्रेस कर लिया, बहुत हो गया कम्युनिकेशन गैप. अब वो कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं चाहते. बिल्कुल सच्चाई से, बिल्कुल नेकेडनेस, ट्रुथ, क्लियर ट्रुथ वो आपको इस रिलेशनशिप के बारे में आपके बताएंगे. दे वॉन्ट टू हैव यूनियन विद यू बिकॉज इट्स 11-11 ट्विन फ्लेम connection. They want to have union, stability, growth, togetherness, partnership, everything with you. They have emotions with you. They want to have a complete life with you. They want you in their life. Commitment, marriage. अगर marriage हो सकती है तो marriage, commitment. It's coming. It's coming. They want to talk to you. They will take action about it. Queen is all about talking about something with clarity. अगर इस रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं है आपको, तो ये क्लैरिटी आपको अब आकर देंगे. बिल्कुल क्लियरली आपको बताएंगे क्या महसूस करते हैं, किस तरह की यूनियन चाहते हैं, कैसा रिश्ता आपके साथ चाहते हैं, क्यों अभी तक नहीं आए. सब कुछ आपको बिल्कुल क्लियर हार्ट से, बिल्कुल क्लियर कम्युनिकेशन के साथ बताएंगे. Movement is coming, change is coming, major shift is coming, and they feel that you have moved on. Maybe आप उनको बहुत खुशहाल दिख रहे हैं, उनको लगता है कि आपका लाइफ साइकिल चेंज हुआ है, कुछ मेजर चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हुए हैं जो कि अब उनको आपकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. दे आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद यू. ये ऐसा ऑब्सेशन है जिससे वो नहीं निकल पा रहे. दे आर टोटली ऑब्सेस्ड विद यू. ऑब्सेशन है उनको. अब हो सकता है आपकी याद में, हो सकता है ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, कुछ ऐसा ऑब्सेशन भी मुझे नज़र आ रहा है. दे वॉन्ट टू गिव स्टेबिलिटी टू यू. दे वॉन्ट टू बिगिन दिस रिलेशनशिप नाउ. दे वॉन्ट टू गिव एवरीथिंग विच यू डिज़ायर इन दिस रिलेशनशिप. दे वॉन्ट टू एंड दिस एंडिंग, डेथ कार्ड. दे वॉन्ट टू चेंज एवरीथिंग. दे वॉन्ट टू बिगिन अ फ्रेश लाइफ विद यू. नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं आपके साथ. नई लाइफ, नई ज़िंदगी. उनको ऐसा लगता है एक नई शुरुआत, ज़िंदगी की नई शुरुआत आपके साथ उन्हें करनी है. जजमेंट कार्ड अगेन. इट्स द फाइनल कॉल फॉर देम. उन्हें लगता है या तो अभी या फिर कभी नहीं. अगर अब आपके पास नहीं आए, बात नहीं की, कम्युनिकेट नहीं किया, तो फिर कभी नहीं आ पाएंगे. दे आर थिंकिंग अबाउट यू फॉर पास्ट 2 months नाउ. 2 महीने से स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं. दे आर थिंकिंग कि कैसे आप तक रास्ता बनाया जाए. मैप ढूंढ रहे हैं आप तक आने का. दे नो दे हैव रिजेक्टेड यू. उन्हें डर है कि आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें. बिकॉज आई थिंक दे रिजेक्टेड यू. दैट्स वाई दे आर टेरिफाइड कि आप उन्हें अब रिजेक्ट ना कर दें. एनर्जीज बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली इस फुल मून के बाद. सो वी विल बी टेकिंग द कार्ड्स नाउ अबाउट व्हाट दे वांट टू से. हम देखते हैं, ये तो उनकी फीलिंग्स हैं, उनके फ्यूचर एक्शंस हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं. आपको कहना क्या चाहते हैं? अगर इस समय उनको कुछ कहना हो तो क्या कहेंगे आपसे? देखते हैं. आपके बिना बहुत परेशान है. कांस्टेंट हेडेक. बिल्कुल परेशान, उदास, परेशान इंसान. जब सर दर्द हो, बस भारीपन हो सर में, हर वक्त एक बेचैनी हो. 5 of Swords. इट्स अ वेरी नेगेटिव एनर्जी. 5 of Swords इज जब कॉन्फ्लिक्ट हो दिमाग में, जब परेशानी हो, दिमाग चल ही नहीं रहा है, कहीं पर भी आपकी याद उनको छोड़ती नहीं है, वो परेशान हो चुके हैं बुरी तरह से. ऑब्सेशन. दे आर ऑब्सेस्ड विद यू. दे कांट सर्वाइव विदाउट यू. दे विल से दैट्स कि मैं नहीं रह पाऊँगा अब आपके बिना. दे विल टेल दिस टू यू. दे आर ट्राइंग टू बी विद देयर फ्रेंड्स. दे वांट टू हैव फ्रेंडशिप विद यू. दे वांट टू हैव दिस जॉय विद यू. उन्हें लगता है कि अब वी नीड टू बी टुगेदर. जॉय की एनर्जी.
दे विल टेल यू दैट आई वॉज वियरिंग दिस मास्क, मैंने तुमसे सच नहीं बताया। बहुत स्ट्रेंथ गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप तक आना है। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, और उसके लिए वो स्ट्रेंथ, उनको लगता है स्ट्रेंथ नहीं है मेरे पास, मैं कैसे आके कहूँगा इतना सब कुछ कि मैं क्या फील करता हूँ। उन्हें डर लगता है कि पहले मैंने इतना रिजेक्ट किया, अब मैं सडनली कहूँ कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए और इतना ज़्यादा पैशन है, इतनी एनर्जी है, मैं रह ही नहीं सकता और मैं बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ। तो अब उन्हें लग रहा है कि मैं इतनी सारी फीलिंग्स जाके कहूँगा कैसे एक्सप्रेस करूँगा। नो, ये है एनर्जी। 2 of Wands अगेन, थिंकिंग, स्ट्रेटजाइजिंग, वेटिंग, कैसे करें, कैसे आए आपकी तरफ। मैप चाहिए, रास्ता चाहिए, रूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दे वांट टू एंड दिस पेन, दे वांट टू एंड दिस पेन। जो उनको ये तकलीफ़ हो रही है ना आपके बिना, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। उन्हें लगता है बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब ये जो कांस्टेंट बेचैनी है, सर दर्द है, टेंशन है, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस को ख़त्म करना चाहते हैं। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? दे वांट टू हैव यूनियन विद यू, दे वांट टू हैव यूनियन विद यू, दे लव यू। लवर्स कार्ड इन द बॉटम, इट्स अ ब्यूटीफुल एस ऑफ कप्स। ओ, अपने आप आया। इतने इमोशंस हैं, इतना प्यार है, इतना ज़्यादा प्यार है कि आपको हैरानी होगी, आप सरप्राइज हो जाओगे कि यार इस इंसान ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, और आज जब ये मुझे बता रहे हैं तो इतना कुछ बता रहे हैं, ऐसा इतना प्यार, मतलब आपको यकीन ही नहीं हुआ उनकी बातों पे कि ऐसा भी हो सकता है। सो ब्यूटीफुल एनर्जीज, ब्यूटीफुल एनर्जीज। ऑल राइट, डिवाइन गाइडेंस, प्लीज़ बताइए ये यूनियन आ कब तक रहा है, ये पर्सन कब तक आ रहे हैं मेरे कलेक्टिव के पास, कब नज़र आएंगे। गॉड, अगैन एंड अगैन एंड अगैन एंड अगैन आई हैव गॉट 2 of Wands thrice in the reading. Still this person is stuck somewhere, thinking and thinking. They don't know how to make a way towards you. रास्ता कैसे बनाएं, रास्ता कैसे बनाएं, स्ट्रैटेजी चाहिए, इस नई शुरुआत की स्ट्रैटेजी चाहिए। कैसे निकले थर्ड पार्टी से, शायद थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे निकले उस जंजाल से, कैसे निकले जिसमें फंसे हुए हैं, वो थक गए हैं वहाँ पर उस सिचुएशन में। दे आर टायर्ड, दे डोंट वांट टू, दे जस्ट फील दैट ओके इट्स इनफ यार, आई वांट टू एंड दिस रिलेशनशिप विद द थर्ड पार्टी। दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, they are confused about this choice. Finally they want to make a choice, they want to make choice about you, they want to make the decision about this choice. थर्ड पार्टी नहीं चाहिए अब उनको, आप चाहिए हो। they want to come towards you, chariot card, they want to come towards you, they don't want the third party, they want to have a breakup with the third party, they're tired of their relationship, they want to give love and stability to you, they want to manifest you, they want to manifest the way। उनको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, कोई रास्ता चाहिए, कोई किसी तरह के रिसोर्सेज को अरेंज करना है आपकी तरफ आने के लिए। बस यही एनर्जी है। थर्ड पार्टी से ब्रेकअप की एनर्जी है गाइस, थर्ड पार्टी से ब्रेकअप की एनर्जी है। मेजर शिफ्ट है इस फुल मून के बाद। फुल मून के बाद उनको रियलाइज़ हुआ है कि मैं कितना अकेला हूँ, कितना परेशान हूँ। मुझे ये सब नहीं चाहिए जो चल रहा है, मुझे जो चाहिए वो वही है, मेरी एम्प्रेस के पास है। एम्प्रेस कार्ड, लवर्स कार्ड, 2 of एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, सब कुछ आपके पास है। प्यार भी आपके पास है, पैशन भी आपके साथ है, नई शुरुआत भी आपको देना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत प्यार से आना चाहते हैं। जहाँ भी हैं वहाँ परेशान हैं, थक गए हैं, अब बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी तरह आपकी तरफ रास्ता बनाना है। 2 महीने से सोच रहे हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने में आ जाएंगे। पहले भी 8 of Wands की एनर्जी आई थी, फिर 2 of Wands की एनर्जी 3 बार आई है, तो आई थिंक 6 weeks, within 6 weeks he will be with you। 6 हफ्ते, 6 हफ्तों में कुछ मेजर होने वाला है क्या? सोचिए 6 हफ्तों में क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में। कोई इवेंट है, कोई ख़ास चीज़ है। 6 हफ्ते, 6 weeks are very important for you। 6 की एनर्जी बन रही है गाइस, तो 6 weeks। तो अगर हम बात करें 1 महीना और 2 हफ्ते,
I'm getting confused about my decks. कहाँ मैंने रख दी हैं? अच्छा ये mix हो गया. Okay. I'm lost in this reading. Such a deep, insightful reading for you all. Beautiful reading. Moonology deck से मैं check कर रही हूँ. Divine messages for you. What is the divine guidance coming for this connection between the collective and their partner? Angel, spirit guides, please give me the divine guidance for this connection. जो full moon के बाद moonology cards हैं, देखते हैं full moon के बाद क्या हमें guidance दे रहे हैं. Angel, spirit guides, Archangel Michael, give me the energies of this masculine for the feminine after this full moon. It's time to take action. Clear message. It's time to take action. It's high time. They want to come rushing towards you. Be bold and take the first move. They have decided. They know that अभी तक उनके दिल में जो भी fear था, डर था आपकी तरफ आने का, be bold and make the first move. वो आपकी तरफ आना चाहते हैं और आ जाएंगे. अब वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. उन्हें पता है कि उनका जो कंफर्ट जोन है उसे तोड़ कर आपके पास आना है. किसी थर्ड सिचुएशन से ब्रेक करके आपके पास आना है. आपको आके अनाउंस करना है कि आप ही उनको चाहिए. यू आर गुड इनफ. दे आर ट्राइंग टू टेल देम दैट दे कैन डू इट. दे आर ट्राइंग टू टेल देमसेल्व्स दैट दे कैन डू इट and they can decide and they can move and they can take that first bold action towards you. A new romantic cycle begins. What a beautiful energy, guys. Beautiful cards. Beautiful cards. Can you see? A new romantic cycle begins. I'm going to end this here. I'm going to leave this reading here with this beautiful a new romantic cycle begins. Don't forget to claim the energies. Type 1111 in comments. Write back to me if you want more readings on whatever you want to know. I wanted to check the energies of divine masculine and divine feminine, and I've got the reading for them only because this is the reading for the divine feminine, divine masculine. So don't worry, they are coming. Just remain positive. Do your work. Do your inner work. They are coming towards you. It's a beautiful reading, guys. Best of luck to all of you.